Jai Gude, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. आज हम लोग काशी भैया के साथ जो प्रश्नोत्तर का सेशन जो हुआ था उसको हम लोग आज देखेंगे और फिर आज का जो हमने सत्र यहाँ पे देखा पद्मराजा लीलावती की जो कहानी आगे बढ़ती है उससे एसोसिएटेड जो प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तर को भी आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओंकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। जयदेव, चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। विल लिसन टू काशी भैया। And meet so many wise, knowledgeable, great people. Thank you. Thank you so much, Usha ji. Thanks for sharing your experience. Kashivya is there with us. Kashivya, over to you. Jai Gurudev. So as you can see, I'm still stuck in the outside. Wasn't able to reach my room because there were so many people on the way. And that is what the Yoga Vashishta is all about. How can when we get stuck in the world, just like Rama was stuck in the world, and he couldn't find a way out. And that's when he asked his Guru. And he said that I have everything. I have a great job, I have a great family, I have everything. And yet I can feel some despondency. Something is lacking. And that's when the Yoga Vashishta happened. And the Yoga Vashishta truly is a way for someone who has walked on the path, and after having all the knowledge, feels that there is something more to be done. That's when the Yoga Vashishta comes in. And for me, the Yoga Vashishta is truly about expanding beyond the intellect. We are so used to living our life with the intellect, isn't it?
trying to make sense of everything that we see, experience through all the five senses. If I hear someone saying something, it needs to make sense. Then I can accept it. But the Yoga Vashishta takes the next step. Now, transcending the intellect is different from negating the intellect. And that for me is one of the most key points in the Yoga Vashishta. It can seem like a fantastic story and you say, well, it doesn't make sense. Or it can allow us to go beyond the intellect. As children, we were not bound by the shackles of the intellect. In the Vigyan Bhairav, Gurudev said many very, very nice things. But one of the things he said so beautifully, he said that it is our knowledge that binds us. And then he clarified, he said, supposing someone does something to me, and I know that that person has done something to me, then that knowledge makes me miserable. So in a certain sense, if we look at it, when we experience this world, and then we make sense of it, our intellect analyzes and says, this is how things are. And when we say this is how things are, that's what can bring us misery. Not always, but that can be the source of misery. और अगर आप देखो कि आपके हर दुख के पीछे बुद्धि ही, तो योग वशिष्ठ में यही बात है कि बुद्धि के परे कैसे, बुद्धि को नकारने की बात नहीं है, पर बुद्धि के परे कैसे जाए. और यही बात जितनी जल्दी से हमें अनुभव में आ जाए, तब योग वशिष्ठ हमने. What do you say? Good idea. So as usual, any questions anyone wants to ask or say something? Since I'm on my phone, it might make sense if someone reads out or asks, or maybe you can unmute and ask. Hey Gurdeep, Kashi bhaiya. Bhaiya, Hey, Gurudev. how does one go beyond the, like हमें पता है कि yes it's good, you want to also go beyond the buddhi, but buddhi का आ जाती है, memories come, you want to get over them, but they come. How does one transcend the buddhi and the memories? By reading the Yoga Vashishta. It's like if you want to learn swimming, then your coach pushes you into the pool once, and then again, and then again, and eventually you learn swimming. So just keep jumping into the pool, and this is a very great pool that you have, a very good sangha. So when you jump into the pool, you better have an instructor nearby, so, or at least other people nearby, so that you don't drown. If you just jump into a pool without someone to help you around, then you could drown. And that's why a sangha is so valuable. So just like on a Zoom call, when someone is talking and someone unmutes themselves by mistake, then things can get confusing and distracting. In the same way, the world can get quite distracting because there are so many different inputs coming to us. जीवन जीते हैं तो कई तरह के हमारे इंद्रियों पर आघात होता है, प्रहार होता है, तो उस सब से बाकी सबको म्यूट करके एक चीज को अनम्यूट करना, ये योग वशिष्ठ है. The intellect keeps analyzing, does so many different things, and when we see all these different inputs coming in, when we are able to mute all the unnecessary ones and focus on the one that we really want to,
then that's it. Thank you. Yeah, so beautiful. Thank you for the Sangha. And what do you do to maintain the Sangha? You know, if you notice, whenever you come together in a group, after some time, people want to move away and go away. How does a Sangha maintain itself? By Seva. When you have some activity, have you noticed when there are children, if you don't give them something to do, then they're going to create all kinds of mischief. If you have a group of children coming over, then you better have some activities planned for them. Otherwise, they're going to break some plates, get the football into the glass cupboard, and so on. So just like as a mom, when you have your children's friends come over, you make sure they're engaged either in some activities or in some food. In the same way, when you're in a Sangha, when you come together, some activity definitely makes a big difference. So I feel that this group is definitely ticking all the right boxes. That's why it's staying together for so long and doing so many nice things, isn't it? So you should all pat yourself on the back. Here there is a question: when does birth not happen? Sorry, I'm not able to hear you clearly. When does rebirth not happen? पुनर्जन्म कब नहीं होता है? ये प्रश्न है. When does rebirth not happen? You know, when you don't worry about rebirth, that's mukti. Freedom is not about negating something, but transcending something. Just say, for example, supposing you are addicted to chocolate cake. Now, saying that I won't eat it, I won't eat it, that becomes another impression. So freedom really is to have the choice. Not having choice is not freedom, but to have the choice is freedom. So what is called mukti is the ability to choose when to come, when not to come. Otherwise, you would ask, hey, isn't Gurudev enlightened? Isn't he mukt? Isn't he free? Then why has he taken birth? So once Gurudev said this so beautifully, he said, when you don't have any desires for yourself, then you desire for the world. And if you notice, that gives you the will to live. Otherwise, it could be very easy to say, hey, I don't have anything else, nothing to do now. So turn the desire for freedom, when we understand what it means, then we can go in the right direction. Otherwise, it feels, hey, I like being here so much. Why do people tell me don't have desires? Why do people tell me don't come back again when this place is so nice, when we have such nice people coming on the Zoom call? Why should I not come back? In the same way, when you enjoy the Zoom call, when you enjoy the Sangha, and someone tells you don't go to the Sangha, don't go to the session, then you'll say, why? Because I enjoy it. In the same way, with life also, life is full of joy and it's perfectly okay to come back. But when you have a choice when to come back, that's freedom. Does that make sense? Great. Yeah, the next question is, what is meant by giving up all the sankalpas? Whenever I do involve sankalpa in everything, even if I have to do good things that involve the sankalpa, why do I to drop? Why sankalpa is called dropping the sankalpa? When we hold on to something, just like the seeds, only if you drop the seeds can the plant grow. If you keep holding the seeds in your hands,
the plant will never grow. It will not fulfill its purpose. The purpose of a sankalpa is to fructify into a result, into the purpose of every intention is to manifest. If you say, I want my intention, then it's not going to manifest. It's like saying, unless the cocoon breaks, the butterfly will not come out. And if you say, hey, I like my cocoon, why should I break it? Then the egg needs to break for the chicken to come out. If you say, well, the egg is very nice, why should I break the egg? Well, because only by breaking the egg will it fulfill its purpose. In the same way, the purpose of an intention is to manifest. And if you say, I will hold on to my intention, then you have spoiled the purpose. And how will you make the purpose manifest? How will you make it fulfill its purpose? By giving it energy. It's like, how will you make sure that your phone functions? By charging it. In the same way, how do we charge our intentions? By attaching it to the main socket. Just like you charge a phone by attaching it to the main line, and the electricity flows in the line, and that charges a phone. The same way, offering the sankalpa to the divine charges it, and that allows it to manifest, to do its work. Isn't this path so beautiful? Yeah, this is a common question that many people who come across reading the Yoga Vasishtha or they hear about it, that there are so many things which are so abstract because it doesn't make, for the intellect, it doesn't make sense. How do we make this Yoga Vasishtha knowledge a reality or in a day-to-day routine life? How can we use it? That's the question. The whole purpose of the Yoga Vasishtha is to reduce our dependence on the intellect. We depend so much on the intellect. But as children, we used to live in a world which was full of magic. Your baby doll was alive for you. Even objects had life when we were children. And as we grew older, even people became objects to manipulate. The Yoga Vasishtha is all about going back to that innocence of childhood, to be able to see possibilities. How will freedom come when we can see more possibilities? Just imagine there's a cow that's tied with a rope to a peg in the center. How far can the cow go to graze? Only the length of the rope. If you want to give the cow more freedom, you need to make the rope longer. Now think of the intellect as the rope. And we have only a certain way of looking at the world. हम दुनिया को किसी एक तरह से ही देखते हैं. So when we increase the length of the rope, and that's what the stories of the Yoga Vasishtha do. So what do we do? How do we make it part of our life? Again and again reading them. And you will notice, just like when you paint something, when you put on the first coat of paint, it doesn't catch fully. But then one more layer, another layer, and then it just kind of becomes so clear. When we were studying mathematics in school, maybe we had to do a little bit of practice sums, and then it became very easy. When we learned how to ride a bicycle, the first time we sat on the bicycle, it seemed not in this lifetime, not for me. Me and the bicycle are not made for each other. But with a little practice, it became not. So if the Yoga Vasishtha feels fantastic, feels completely out of our experience, feels not relatable, then all you need to do is again and again and again go through it. And that process makes something wonderful come out. So don't worry if it doesn't make sense, but know that the grace of the Master, the grace of the Guru, definitely allows us to achieve that which we can't achieve by ourselves. Thank you so much, Kashi Bhaiya. Often Gurudevs have been found saying that this entire world is not
real. This is the unreal world. And you also often say the same thing. And Yoga Vasishtha we are reading, it also is giving us the same message. Can you please explain that to us? So what is real, what is unreal? In the Shastra, it says, Trikala Badhitam Tat Satyam. What is the Satya? What is the truth? That which is not obstructed by the past, present, and future. If something is eternal, then that's true. If something is changing, it was true yesterday, it's false now. It's true now, but it's false later on. Then that's not the absolute truth. So what is it that doesn't change? And if you look at it, every one of us feels there's something in me that has not changed. I am the same person. And the body has changed, thoughts have changed, but something in me has not changed. So getting to that is the whole purpose of all this sadhana. And to the extent we are able to do that, and it's not going to happen overnight for sure. So what can help us to get there? When you see that, hey, all of this is changing. So if I say my thoughts are changing, this world is changing, people are changing, ideas are changing, opinions are changing. And when we see that, then we can see that, hey, this is not real. It was true yesterday, it's not true anymore. And when we look at the world like that, we see that all of this is Maya. It's all a changing world. Just imagine if you try to hold on to mercury. Have you seen those mercury droplets? You try to hold on and it just runs away. Or have you ever tried to catch a mischievous child? The more you try to catch, the more they run away. The same with our own mind. And the same with our idea of the truth. The more we tend to catch it, the more it seems to run away. But in the process of doing that, something beautiful happens. And so Gurudev says so beautifully that fake it till you make it. So know that whether you like it or not, this is the truth. It's like gravity. Whether you believe in gravity or don't believe in gravity, you'll still stay on earth. Yeah. But when Newton wrote down the laws of gravity, then we were able to use those laws and come up with so many machines, so many things came up. Aeroplanes were built on those principles. So once we understand the reality, it allows us to build on that. And that allows us to really move forward in life. Does that make sense? And that's why knowledge helps us in moving ahead. One last question. Thank you so much, Kashi Bhaiya. As you also come from the IIT and the technology background, and also been on this spiritual path for being so long with Gurudev. Here there is a question from Usha ji that we watched this video called, and it all talks about quantum mechanics, quantum. Often there is a myth that the science and spiritually doesn't go along. And then at the end of the day, scientists also agree to the Yoga Vasishtha and finally they say that there is something more to be known. What does this more mean to you? Or what is it that you would like to advise to us? You know, it's unique for each and every person. Everyone has their own path. So we don't have to compare with someone else. Oh, Kashi Bhaiya has a beard and long hair, I should also have a beard and long hair. No way. Everyone has their own path in life. And so you find out for yourself. That's why Gurudev says so beautifully, one who knows will not tell, and one who says does not know. Because it's not the answer, but the way we get to the answer, that is so valuable. So wake up, and you can get inspired by others for sure.
but find your own path. And that's what the Yoga Vasishta is all about. It's about culturing the mind. And when we do this again and again and again, the mind opens up and says, yes, of course, there is much more to life than what is obvious, whatever the intellect gathers. So once again, I'm saying it's not about negating the intellect, but about transcending the intellect. And that they're two completely different things. One is saying that what I'm seeing, that's wrong. And the other is saying that what I'm seeing is not necessarily right. Though it seems very similar, it actually means completely different things. Yeah. Thank you so much, Bhaiya, for such a wonderful insights about the Yoga Vasishta. Richa is wanting to say. Go ahead, Richa. Yeah, go ahead, Richa ji. Jai Gurudev, Kashi Bhaiya. Jai Gurudev. On this path of knowledge, when I'm doing certain courses, so my family kind of tells me at times that you don't have time now, or you are doing one course after the other. So I mean, what is the explanation? Like getting busy in my own self, or क्या होगा? मतलब ये वैरागी की तरफ जा रहे हैं, or find this like. There is no right answer. Okay. So ये मत सोचो कि one technique will work everywhere. And it's not so much about what you say, but who you are that really matters. Have you noticed that a lot of times different people say the same things, but you believe some people and you don't believe others? So it's not about the words, but it's about your conviction. And so a lot of times, even if you don't say anything, people do get it, isn't it? And Yeah. sometimes we put so many words and it just confuses the matter even more. So Gurudev usually quotes this Zen proverb. He says, when you're confused, take a pillow and go to bed. And that's the way to move ahead. Yeah, one more question. Please take it. We want Yoga Vasishta, the entire series to happen again. We being Ram and Gurudev being the Vasishta. Can you please request Gurudev to have sessions on Yoga Vasishta? He has done on all other scriptures, but Yoga Vasishta. So please get it done. Definitely. I'll definitely pass on your request for sure. Okay. You know, there is a story. Once upon a time, long, long ago, it was just after Navratri, and we were all sitting in Shakti Kutir with Gurudev, some teachers, and sabki plan ban rahi thi. They're making plans, who will go where, teach what, whatever. And Gurudev was saying, okay, you go to UP, you go here, you go there. And we were all saying, yes, Gurudev, ho jayega, it'll all happen. Yes, we'll do it. Suddenly he stopped and said, Are, you should be making the plans and I should be blessing you. Yes, it'll happen. यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है. मैं प्लान बना रहा हूँ और आप बोल रहे हो जाएगा. So it's so interesting how we make plans for Gurudev, and definitely because Gurudev loves us so much that he has such a beautiful connection with each one of us. That's why he listens to all of us and makes us feel that, yeah, it's our plan. And in all these years with Gurudev, if I've learned anything, it is to know that just to go with the flow. At the same time, if at all there is any place where you have to give your sankalpa, your intentions, your desires, it is to the Guru. So definitely your intention will be passed on, and know that whatever is best will definitely happen. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Jai Gurudev, everyone. Have fun, rest well, keep smiling. Jai Guru. Jai Guru. Jai Gurudev Kashi Bhaiya. Thank you so much for joining. On behalf of our entire team, we express the gratitude and please pass on lots of blessings from you as well. Jai Gurudev.
Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. So that काशी भैया on योग वाशिष्ठ, अलग अलग प्रश्न के उत्तर देते हुए हमें काशी भैया को सुना। चलिए अपने सत्र को अभी आगे बढ़ाते हैं, इस सत्र को आपके लिए खुला कर देते हैं। यदि आपके मन में काशी भैया ने जो कुछ भी कहा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो जरूर हम लोग यहाँ पर उसको चर्चा कर सकते हैं। और जो अपना पद्म राजा लीलावती का जो कहानी जो काशी भैया ज्वाइन करने से पहले हमने सुना या आपने पढ़ा भी होगा, आपका होमवर्क था, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप जरूर उससे रिलेटेड प्रश्नों को भी यहाँ पे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। हाँ जय स्मिता जी, प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव। अभी काशी भैया जो बोल रहे थे कि चॉकलेट का एडिक्शन हो गया, तो उनका जो उन्होंने एक्सप्लेन किया तो वो नहीं समझा कि क्या हाँ, तो आज काशी भैया ने काफी सारे अलग अलग चीजें बताई और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, है ना। तो जो सबसे पहली चीज काशी भैया ने बताई वो था कि किसी चीज को निगेट नहीं करना है। निगेट नहीं करना है माने अभी हम लोग जब योग वशिष्ठ पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कई बार गुरुदेव भी बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो। अभी सब कुछ छोड़ दो, कैसे छोड़ दे सब कुछ जब गुरुदेव बोलते हैं सब कुछ छोड़ दो, या आज भी जैसे काशी भाई ने बताया कि आप बुद्धि के परे चले जाओ, तो कई बार आप योग वशिष्ठ में सुनेंगे कि मन को नष्ट कर दो, उसका नाश कर दो, उसको छोड़ दो। तो एक्चुअली यहाँ पे छोड़ने का मतलब उसको नाश करना या नष्ट करना नहीं है, उसके परे जाना है। बस बुद्धि तो जीवन में इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में बुद्धि इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरुदेव क्या बताते हैं, काशी भाई ने क्या बताया कि अक्सर क्या हो जाता है जब अपने को अपने साथ में होता है तो ये बुद्धि एक बाधा के रूप में अपने सामने आ जाती है और अपने को क्या करते हैं एक विशिष्ट कॉन्सेप्ट में, एक विशिष्ट चीज में तर्क के भांति उसको अटका देती है। अभी कई सारी चीजें जो ऐसी जीवन में घटित होती है या यह विश्व का जो पसारा है, जिस तरह से ये फैला हुआ है, यहाँ पे कई सारी चीजें अचंभित होने जैसी लगती है कि जो अपने तर्क के लेवल पे फिट नहीं बैठती है। तो फिर ऐसी चीजों का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा, ऐसी चीजों कैसे हम लोग कैसे उसके साथ हो पाएंगे या अपने सांप के साथ कैसे हो पाएंगे, बिकॉज बुद्धि के परे चीजें हैं बहुत सारी। तो बोलते जब तक आप उस बुद्धि को ट्रांसेंड नहीं करते, उसको पार नहीं लगाते, उसको जैसे वैसे स्वीकार करके उसको आगे नहीं बढ़ते हो, तब तक फिर क्या होता है आप अपने आप के साथ नहीं हो पाते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मन है, जो बुद्धि है, बाकी के जो अपने स्तर है, उनको स्वीकार करके, जो जैसे वैसे स्वीकार करके हम लोगों को कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो या कुछ देर के लिए क्यों ना हो, और इफ यू आर एबल टू डू इट आप 24/7, फिर नथिंग लाइक दैट, तो हमको उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, जो जैसा वैसा स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो बोलते हैं यही चीज हमें योग वशिष्ठ में देखने को मिलती है कि कई सारी अपने बुद्धि के स्तर पे अचंभित करने लायक चीजें हम लोग सुनते, बिल्कुल वंडरस्टक हो जाते हैं कि यार अरे यार ऐसे कैसे, या तो एक ऐसे कैसे ऐसा आएगा, अरे यार लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा आएगा। दोनों चीजें घातक है। तो माने दोनों में ना फंसते हुए जो जैसा है वैसे वैसे स्वीकार करके इट्स एटलीस्ट बेटर टू बी गेट वंडरस्टक अबाउट इट एंड आश्चर्यकारक होके आप उसके आगे बढ़ जाओ। और यदि ऐसे कैसे यह हो गया तो फिर उसमें स्टक हो गए, देन यू वुड लाइक टू नो द आंसर फॉर दैट, है ना। अच्छा, इसमें गलत और सही की बात नहीं हो रही है। साइंटिस्ट ऐसे नहीं सोचेगा कि मेरे को कुछ और जानना है तो कुछ इनोवेशन कभी जीवन में होगा ही नहीं। तो इट इज ओके टू follow that path where you are very curious about the things and you want to invent, you want to discover, वो एक पाथ हो गया।
लेकिन जब आप अध्यात्म में थे पूरा अपना जीवन की जो है अपने पंचेंद्रिय है उनकी जो लिमिटेशंस है उस कैपेसिटी, अगर तुमने 24/7 तुम सब कुछ सिर्फ सोच रहे हो, इतना अग्रेजन में जा रहे हो, तो बोलते आप शांत नहीं हो पाते हो। जब आप शांत नहीं हो पाते हो तो क्रिएटिविटी डाउन नहीं होती है, तो यू फील फटीग। आप पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, फटीग आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, एक आप टूट जाते हो उसमें से। तो देन इन बिटवीन यू मस्ट, देखो प्रकृति आपको स्लीप में डाल देती है ना, रोज रात को आपको सोना पड़ता है। यदि आप सोओगे नहीं तो फिर चलेगा क्या? बिकॉज सोने में भी तो काफी सारी हीलिंग होती है, सोने में भी तो जो काफी सारा है ना अपना रिजुविनेशन होता है, सोने में भी काफी सारा, बोले बच्चों का सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है ना वो सोने में होता है। इसलिए जो बच्चे ज्यादा सो नहीं पाते उनका ग्रोथ रुक जाता है, वो ग्रोथ नहीं होता है, उनका कुपोषित हो जाते हैं, उनका पोषण नहीं होता है क्योंकि ठीक से नींद नहीं मिली उसलिए। तो जैसे स्लीप अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही यह जो बुद्धि जो है ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली एंगेज करके रखती है। लेकिन गुरुदेव बोलते कि उससे यदि शांत होना है तो उससे परे जाना पड़ेगा, उसको कुछ देर के लिए आपको रोक देना पड़ेगा। आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ बुद्धि 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 से नहीं कर सकते, कुछ देर के लिए आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा। You have to just transcend it. You have to go beyond mind. You have to go beyond buddhi, beyond intellect. Then only you'll get access which is beyond the limitation of your intellect. Because अपने बुद्धि का लिमिटेशन तो है ना, तो उसके परे की चीजें फिर कैसे आपको एक्सेस मिलेगा उसका? तो बोलते वो अपने आप के पास जाने के लिए आपको कुछ देर के लिए आपको बुद्धि को ट्रांसेंड करना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर बात आती है कि किसी के प्रति हम लोग जब एक अटैच हो जाते तो दैट इज द वेयर ही गिव एन एग्जांपल कि भाई आप केक है, तो अभी ऐसा नहीं कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है तो लेकिन फिर मैं ऐसा बोलूं क्या मुझे वासनाओं के परे जाना है या इन जो पंचेंद्रिय जो विषय है, बिकॉज चॉकलेट केक अपना एक टेस्ट के लिए एक विषय बन गया ना, तो विषयों के परे जाना, इंद्रजीत बनना है, हमने देखा सब सेल्फ कंट्रोल एंड ऑल दैट। बट डज दैट मीन दैट कि चलो मैं चॉकलेट केक को खाऊं ही नहीं? तो निगेशन हो गया ना, तो घृणा हो गई। यह ठीक है जब आप थोड़ी देर के लिए संन्यास ले लेते हो या इसकी प्रैक्टिस करते हो, उपवास करते हो। उपवास के जानबूझ के हम लोग खाना नहीं खाते, भूख लगी रहती जब तब भी नहीं खाते, उपवास चलता रहता है बिकॉज हम लोग उपवास करें, फास्टिंग करें, तो सामने होके भी नहीं खाते। लेकिन ऐसा हमने बोल दिया कि चलो मैं खाऊंगा ही नहीं, तो देन दैट्स अगेन अनदर प्रॉब्लम। सेम विद सेक्स, यदि आपका गृहस्थाश्रम में आप हो और आप बोलोगे कि यार मेरी शादी हो चुकी है और मैं तो अभी योगशिष्ट पढ़ लिया, मैं गुरुदेव से मिल गया, और तो देखो काशी भैया ने तो संन्यास ले लिया, हर्षल काशी, गुरुदेव ने भी शादी नहीं, चलो मैं तो अभी ये गृहस्थाश्रम छोड़ के मेरे को तो नहीं करना ना, ऐसा आप बोलोगे तो फिर चलेगा क्या? नॉट गोइंग टू वर्क ना। तो वो बात नहीं है। आइडिया क्या है, उस एक्शंस को ड्रॉप नहीं करना है आपको उस एक्शन के प्रति जो मोह जो उत्पन्न हो जाता है, एंटेंगर जो हो जाता है, उसको ड्रॉप करना है। 24/7 यू कैन नॉट थिंक अबाउट ओनली चॉकलेट केक, और 24/7 यू कैन नॉट थिंक अबाउट ओनली सेक्स, नॉट पॉसिबल। देन कुछ कर ही नहीं पाओगे, then you will not be able to do anything else in your life। तो बोलते उसके प्रति जो मोह है, जो अटैचमेंट है, जो एंटेंगलमेंट है, उसको ड्रॉप होने की बात करें। वही चॉकलेट केक के लिए काशी भाई समझाते कि निगेशन में नहीं जाना उसके, यू डोंट हैव टू, ऐसे नहीं घृणा उसके प्रति, चॉकलेट केक के प्रति, तो फिर अटक गए ना उसमें। जिससे मुक्त होना था उसी में एक्चुअली अटक गए। पहले था लाइक करते थे, अभी डिसलाइक करने लग गए या घृणा करने लग गए, तो अटक गए ना। आइदर वे में अटके ही हुए हो। आइडिया इज टू गेट मुक्त, आइडिया इज टू बिकम फ्री फ्रॉम इट। तो कैसे फ्री बनोगे? तो उसको स्वीकार करके, हाँ जब कभी लगा तो खा लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज 4 बार आज चॉकलेट केक ही खाओगे, दूसरा कुछ खाने को तैयार, ये भी ठीक नहीं है। और कभी कभार खा लिया तो इट्स ओके, इट्स फाइन। इसको जान के आप आगे बढ़ो, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही बुद्धि के साथ भी उसको निगेट नहीं करना है, उसको ट्रांसेंड करना है। तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, नॉट जस्ट बुद्धि। मन के लिए भी यही होता है, सबके लिए, पंचेंद्रियों के लिए भी होता है। वी हैव टू गो बियॉन्ड, उसके परे कुछ और है। उस परे को जानने के लिए या उसका अनुभव लेने के लिए आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो जस्ट ये मैसेज था। थैंक यू, बहुत सुंदर समझा, अभी समझ आया।
चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज के सत्र जो काशी भैया ने कहा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अपना जो स्टोरी है उससे रिलेटेड, योग वशिष्ठ का जो चल रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न है तो वो भी पूछे जा सकते हैं। हाँ रमा जी प्लीज गो अहेड। भैया हम पढ़ते पढ़ते एक जगह में देखे कि हम हाँ। लोग की जो लीलावती सरस्वती जी का जो प्रश्न उत्तर है, तो एक जगह में लीलावती बोलती है कि मैं आधिभौतिक देह को कैसे छोड़कर अतिवाहिक देह में जाऊंगी, एंड आपका साथ तो मैं अगर वो वशिष्ठ ब्राह्मण का घर में जाना चाहूंगी तो दोनों शरीर का तो संबंध मिल नहीं होगी। तो हम लोग भी वैसे ही रोज के अभ्यास से हमारा जो अतिवाहिक शरीर को हमरा आधिभौतिक समझ लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन आधिभौतिक से अतिवाहिक, इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको केवल अभ्यास से होता है, प्रयत्न से होता है। यही आपको आपसे हमको एक्सप्लेन चाहिए। हाँ तो यहाँ पे हमने देखा कि सरस्वती उनको वर भी देती है ना, और माने दोनों तरीके से देख सकते हैं इसको, आशीर्वाद के रूप में भी होता है, ग्रेस के रूप में भी होता है, इसको पराशक्ति कहते हैं। जैसे वेद वगैरह वो जो सब कुछ जो इन्होंने कई सारी चीजें ना वो उनको ध्यान में मेडिटेशन में डाउनलोड हो गया वो नॉलेज। ऐसा नहीं कि वो लिखा हुआ था कहीं पे पढ़ा उन्होंने, ऐसा नहीं था। तो कुछ चीजें जो होती है वो इस तरह से भी मिलती है, मिल चुके कई सारे लोगों को, तो उस तरह से भी आता है ज्ञान, उस तरह से भी वो सिद्धियां या जो होता है वो उस तरह से भी आता है। और कुछ जो होता है वो तो अपने 100 प्रयत्नों से आपको करना पड़ता है, अपने को बातचीत करना पड़ता है। जैसे कि आपको अपनी बॉडी बनानी है तो सडनली आपकी बॉडी मसल्स नहीं बन जाएगी ध्यान करते करते, उसके लिए तो आपको सूर्य नमस्कार, उसके लिए व्यायाम, चलना दौड़ना भागना बॉक्सिंग जो भी है वो करना पड़ेगा। कुछ चीजें एफर्ट से होती है, ध्यान करना है तो आपको सारे एफर्ट छोड़ के बैठ जाना पड़ता है। कुछ चीजों के लिए आपको कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है। जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस नहीं करोगे, कंसंट्रेशन नहीं करेगा तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन ध्यान करते तो उसको कंसंट्रेशन को फोकस को छोड़ना पड़ता है। तो कुछ चीजें पकड़ के मिलती है, कुछ चीजें छोड़ के मिलती है। तो सही समय पे सही चीज करना यही ज्ञान, यही विजडम है। एक ही चीज हम लोग हर समय नहीं कर सकते, तो जो चीज जिस वक्त करनी है उसको करके खत्म करो। यह ज्ञान भी है और ये विजडम भी है। ये जो योग वशिष्ठ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज होते हैं ना कि पहले स्तर में सर के ऊपर से चल जाता है, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तब फिर लगता है कुछ समझे, फिर थर्ड टाइम जब पढ़ते हैं फिर क्लियर होते हैं। हाँ ये काशी भैया ने भी आज बताया ना कि वो पेंट होता है, पहला कोट लगाते हैं तो फिर वो ये नहीं होता, लेकिन दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से वो पेंट बैठ जाता है ना। तो यही होता है। या तो इसीलिए हम लोग इसका ना एक प्रक्रिया जो है, वो प्रक्रिया क्या है, वाचन करो, खुद वाचन करो। कि आपको खुद वाचन करोगे तो कुछ तो चमकेगा अंदर से, है ना, जो आपको चमकेगा। हो सकता है कि वो बाकी के सारे कई माध्यम से ना मिले, बिकॉज आप पढ़ रहे हो ना, तो आपका पिछला जो संस्कार है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस के ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो जो नया डायमेंशन उसका मिलेगा। नहीं तो फिर तो सिर्फ बाकी का ही सुनोगे तो फिर वो जो नया डायमेंशन मिलने वाला रुक जाएगा। तो वो नहीं, अनबायस्ड जो होता है ना, कि अपना जो है हमारा खुद का ये होता है, वो पढ़ने से ही आएगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो वाचन करो, खुद वाचन करो। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, वाचन करते हैं बोलते तो ऐसा जो जिस तरह से अपना ब्रेन है, जिस तरह से मेमोरी वर्क करती है, तो जो पढ़ते हैं उसका 10% ही हमको याद रहता है। दैट इज द वे इट वर्क्स। तो बोलते जो हम लोग पढ़ते हैं उसका 10% याद रहता है, लेकिन जो सुनते हैं उसका 20% याद रहता है। तो इसलिए श्रवण में जाओ। फिर जो पहले भी पढ़ चुके हैं वो भी एक प्रक्रिया कि आप नोट्स निकालो, वो भी एक प्रक्रिया है ना। तो लिखने की चीज अपना खुद का हो गया, राइटिंग वाला। तो वाचन हो गया, श्रवण हो गया, नोट्स कुछ निकाल लिया। फिर श्रवण करते समय क्या होता है, जो हमने वाचन किया होता है उस वक्त अपने मन में जो प्रश्न होते हैं, हो सकता है कि वो श्रवण करते समय वो एड्रेस हो जाए, या हो सकता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो चीज उतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन कोई स्टोरी है जो स्टोरी के माध्यम से श्रवण करते हैं वो इजी हो जाता है, इजी हो जाता है, सिंप्लीफाइड। इसलिए वो श्रवण इंपॉर्टेंट है। देन उसके ऊपर क्या, वाचन हो गया, श्रवण हो गया, लेकिन फिर भी कोई चीजें नहीं पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होती। जैसे अभी हमने काशी भैया को सुना, फिर भी स्मिता जी को कुछ चीजें
थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो आ जाता है अपने पार्ट आ जाता है कि पहले तो मनन करो, खुद मनन करो, देन उसके बाद में चिंतन करो, फिर उसके बाद में मंथन करो। तो जो मंथन जो चीज होती है, चिंतन और मंथन जो चीज होती है, वो हम लोग यहाँ पे इस सत्र में करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, जो अपने आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है, उसको वैलिडेट कर लेते हैं कि भैया मैंने ऐसा सोचा कि ये ऐसा ही है क्या, या मैंने ऐसा पढ़ा लेकिन ये थोड़ा और बता सकते हैं क्या। इससे क्या हो रहा है, मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रही है। तो वो चर्निंग जब होती है, जो मंथन जो होता है, उसमें भी क्या होता है, चीजें आ जाती है। जैसे आप इसके पहले हम लोग श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद में वहां पे भी एक मंथन होते हुए दिखता है, तो वो भी आप सुनना। इसलिए मैं होमवर्क के रूप में उसकी वीडियोस की लिंक भी आपको दे देता हूँ। कई बात है, समय की पाबंदी होती है, तो हम लोग बाकी सारा पूरा सत्र नहीं सुन पाते। हम लोग जो मैं सेशन लेता हूँ वो लेता हूँ, और बाकी देखा होगा आपने कि कई बार पीछे का पोर्शन कट करना पड़ता है, बस समय नहीं होता 8 बजे अपने को सत्र शुरू करने से। तो लेकिन वो सुनना जरूरी है ना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट्स। सचिन जी के इनसाइट्स है, संगीता जी के इनसाइट्स है, संजय जी के इनसाइट्स है, काफी सारे अलग अलग लोग हैं, उनके भी प्रश्न होते हैं। कई बार अपने मन में प्रश्न नहीं आते, लेकिन लोगों के प्रश्न सुन के भी तो ज्ञान मिलता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो। तो उसको आप देखो, तो वीडियो को देखना एक हो गया, श्रवण को फिर से बात सुनना एक हो गया, फिर मंथन में यहाँ पे जो होता है क्लैरिटी आ जाता है। फिर अपने को क्या हो जाता है, अपने को एक चीज अपने को बुद्धि के लेवल पे बोलो या एक समझने के लेवल पे बोलो, वो एक समझ चुकी होती चीज। फिर जो समझ चुका है कि ऐसा है, फिर उसको अपने जीवन में ढालो। वो तो कोई और कर ही नहीं सकता आपके लिए, वो तो आपको ही करना है। उसको बोलते हैं निधिध्यासा। उसको अपने जीवन में आचरण में लाओ, आचार्य बन जाओ, अपने जीवन में निधिध्यास में लाओ, आचरण में लाओ, उसको प्रैक्टिस करो। तो बार 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 तो इंद्रजीत बनना है, अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में योग वशिष्ठ पढ़ लिया, 2 दिन में पढ़ लिया तो तुरंत वो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए लगती है प्रैक्टिस। इसके लिए जो सन्यासी वगैरह होते हैं, वो ऐसे अलग अलग आश्रम क्यों लगा के रखे हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास। और जो कभी कभी एक संकल्प ले लेते कि नहीं चार हम लोग नहीं करेंगे, होता है ना, मुस्लिम्स होते हैं, हम लोग रोजा करेंगे, नवरात्रि में हम लोग उपवास करते हैं, नहीं खाएंगे इतने 9 दिन। जैन लोग होते हैं, वो भी उपवास करते हुए दिखते हैं। तो उपवास माने सिर्फ खाने के लिए उपवास की बात नहीं हो रही है, कुछ दिन के लिए इस मंथ में आई विल नॉट डू सेक्स, नो, आई विल ईट ओनली लिक्विड डाइट, आई विल ईट ओनली फ्रूट्स। ये क्या है सारा, यह अपने इंद्रियों अभ्यास कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आप विपासना में चले जाते हो, तो विपासना में 10 दिन होते हैं, में चले जाते हो तो 4 दिन होते हैं, मौन में होते हो आप, बात नहीं करते, अभ्यास ही तो है, मौन में होते हो। तो ये सारी प्रक्रिया क्या है, अपने अपने इंद्रियों के ऊपर अपने को कंट्रोल करने के लिए जो वो अभ्यास कर रहे हैं। तो वो अभ्यास करने से धीरे 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 होने लगता है। उसका महत्व भी समझ में आता है, और नए डायमेंशन में जब आप मौन हो जाते हैं तो देखो कितने अलग डायमेंशन खुलते हैं जीवन के। जिन्होंने एडवांस कोर्स किया उनको जरूर अनुभव है, तो जिन्होंने नहीं किया वो लोग कर ले। तो अलग अलग अनुभवों को हम लोग प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अनुभव में फंसना नहीं है। किसी भी प्रकार की मेरे को ऐसी सिद्धि मिल जाएगी फिर भी मैं सरस्वती की तरह उड़ने लगूंगा, ये सब छोड़ो। मुक्त, एक हाथ में मुक्ति दे दिया और दूसरे हाथ में सिद्धि दे दिया, किसको लोगे, मुक्ति को लोगे या सिद्धि को लोगे? मुक्ति को ले लो, इज अ विजडम। सिद्धियों को लेके करोगे क्या, सिद्धियों को लेके फिर से इस जगत में उसको यूटिलाइज करते घूमोगे फिरोगे। आगे चल के निर्वाण प्रकरण में एक विपश्चित राजा की कहानी आती है। तो विपश्चित राजा ऐसे ही घूमता है, 4 रूप ले लेता है, पूरी सृष्टि को देखना चाहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, ये तो इच्छा तो खत्म ही नहीं होती कुछ देखने की, भ्रमण करने की। तो बोलते कब तक, तो बोलते इसलिए वो सिद्धियों को छोड़ो, वो ऐसा, और जो होना है हो जाएगा, होता है तो ठीक, लेकिन आइडिया इज टू बिकम फ्री ना, मुक्त बनना है। और मुक्त बनने के लिए आज काशी भाई ने क्या बताया हमको, मुक्त बनने के लिए, मुक्त बनने के लिए कोई मरने वरने की जरूरत नहीं है। मुक्त बनने के लिए यू हैव टू हैव दैट फ्री विल। प्रश्न पूछा था ना, रचना जी ने प्रश्न पूछा था कि भैया रीबर्थ के बारे में क्या, फिर रीबर्थ होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या? बोलते व्हाई यू टू रिजेक्ट दैट, आपको इस जन्म के चक्कर से छूटना क्यों है? जब बोलते आना है यहाँ पे तो अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं आऊं मैं, व्हाई नॉट, आई विल कम हियर नो। जैसे अभी सत्र है, योग वशिष्ठ का सत्र अच्छा लगता है आना, बुद्धदेव ने एग्जाम्पल दिया, मेरे को आना अच्छा लगता है, मैं क्यों नहीं आऊं भाई,
अच्छा लगता है मुझे। अब मैं क्या वहां पे ज्ञान लगा दूं कि मेरे को अटैच नहीं होना योगेश्वर के नॉलेज सेशन से वो तो बेवकूफी हो जाएगी फिर। बोलते वो बात नहीं है। बात क्या है कि आपकी फ्री विल, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहते हो तो कोई कंपल्शन नहीं है, फोर्स नहीं है ना, कोई ऐसा फोर्स नहीं, जेल नहीं चल रही है यहाँ पे। तो मतलब वो फ्रीडम जो है ना, वो मुक्ति होती है। तो हर चीज से मैं चाहूं तो मैं खा सकता हूँ एंड खा के भी अफेक्ट ना हूं, यह मुक्ति है। इन चीज से होके वह मुक्ति अपने को मिल जाएगी। तो वो मुक्ति को हमें प्राप्त करना है अपने जीवन में, उस फ्रीडम को हमें जीवन में प्राप्त करना है, उस मोक्ष को हमें प्राप्त करना है। देन इट विल बिकम माई फ्री विल दैट आई कम बैक, एंड देन इट्स ओके। देन उसके अलावा इससे दो और चीजें कश्यप ने ऐड की थी कि ऐसा क्यों, तो बोलते उसके लिए क्या करे, तो सेवा करो। उसके लिए सेवा करने से क्या होगा, जब आप सोचते हो मुझे यह प्राप्त हो गया है या मुझे मुक्ति मिल गई या जो कुछ भी मुझे मिल गया वो मैं सेवा में लगा दूं उसका, तो उसमें क्या होगा, जब मुक्ति की स्थिति आ जाएगी ना, तो यू विल नॉट गो टू डिप्रेशन काइंड ऑफ एनवायरमेंट कि अभी करने के कुछ रहा नहीं तो चलो छोड़ो, जग को छोड़ो। अरे भाई इतना समय लगता है किसी को मुक्त होने के लिए, और वो आप मुक्त हो गए तो आप अपने शरीर छोड़ के इस चैतन्य में विलीन हो गए। कुछ गलत है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, उसमें भी जिनकी इच्छा वो ऐसे करे, वो उनकी इच्छा है तो है। लेकिन किसी की इच्छा ये भी हो सकती है कि चलो मैं मुक्त हो गया, लेकिन कई सारे लोग अभी भी दुख में जी रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनको थोड़ा बहुत मुझसे जितना होता है मैं उनको हेल्प कर दूं मुक्त होने के लिए। ये भी तो एक अलग है ना। तो इससे इसका बड़ा लाभ है भैया योग वशिष्ठ में पढ़ने या सुनने या इस कंपनी में रहने की, कि आगे का जो दुख राग देश सब कम होते जाता है। बिल्कुल यही होता ही, सबसे बड़ा लाभ है। बिल्कुल बड़ा लाभ है। और जब आपको ये लाभ मिलने लगे तो क्या आप स्वार्थी हो जाओगे, निकल लोगे? नो। जो गुरुदेव जैसे लोग यहाँ पे जब आते हैं तो उनका पर्पज ही नहीं रहता, उनका उद्देश्य रहता है कि मुझे जो मिला, मुझे जो अनुभव हो रहा है मैं सबके साथ शेयर करूं, अपने साथ कई सारे लोगों को मुक्त करूं। वो मुक्तों का भी एक लक्षण है। ये नहीं कि गुरुदेव ने रीबर्थ ले लिया तो क्या फिर वो मुक्त है कि नहीं, एनलाइटन है कि नहीं, ये सोचना नहीं है। उनकी मर्जी है, वो आए यहाँ पे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्। है ना। तो जब जब जरूरत होगी तो मैं आऊंगा, मेरी फ्री विल है भाई। तो मैं मुक्त हूँ, मैं कोई बंधा थोड़ी हूँ कि मेरे को आना ही है या मैं आ नहीं सकता, ये बात भी नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं प्रकट हूँ, मैं तब आऊंगा। तो कहा ये कृष्ण ने, तो वो आते रहते हैं। जीवन मुक्ता का यही लक्षण है कि जब जब जरूरत होती है तब तब वो प्रकट होते हैं, तब तब वो लोग आते रहते हैं। इतना भैया, है ना। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। भैया किसी के चार शब्द का अर्थ मुझे बता दीजिए। एक इक्षण, कलना और उपपत्ति और चिद्रुपता। हाँ, पहला शब्द क्या था? इक्षण इच्छा। इक्षण ई बड़ाई समझोगे छ और मूर्धन्य। इक्षण थोड़ा पढ़ के सुनाई ना, वहां पे लिखा क्या है, मुझे वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है। इक्षण मुझे नहीं समझ में आ रहा ये शब्द। और कलन। हाँ, कलना क्या होता है बता सकता हूँ मैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अपना जन्म और मृत्यु होता है ना। तो जन्म मृत्यु के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन जाता है, जैसे चंद्र की कलाएं कहते हैं ना, चंद्र क्या जाता है कला से एक दूसरे से, उसको कलना कहते हैं। उसको उस प्रोसेस को कलना कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना उसको कला कहते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसका शरीर नष्ट हो गया, तो शरीर क्या हो गया, एक शरीर से दूसरे चैतन्य ने दूसरे शरीर को कह लिया। तो मृत्यु एक्चुअली मृत्यु नहीं होती है, वो शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। प्रोसेस को कलना कहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। चिद्रुपता मुझे भी नहीं पता, उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में। और एक जगह में उपपत्ति। हाँ, उत्पत्ति है। उत्पत्ति उससे रिलेटेड उपपत्ति कहा गया है। तो वैसे जो अपना क्रम होता है
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, उससे हम लोग उसको उपपत्ति या उत्पत्ति कहते हैं। ओके। हाँ, चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उन प्रश्नों को यहाँ पे बात कर सकते हो। भैया जय गुरुदेव भैया, माधुरी बोल रही थी भैया। जय देव। जय गुरुदेव भैया। भैया मुझे ये पूछना था कि एक बार आपने बताया था कि डी एडिक्शन भी जैसे छूट जाता है, डी एडिक्शन भी इससे। मैं थोड़ा अलग प्रश्न पूछ रही थी, आज का जो सेशन था उससे अलग। हाँ, क्योंकि अभी मुझे क्रिया और साधना करते टाइम मुझे ये ध्यान आया कि मेरे कितने जान पहचान के लोगों के पास जब मैं क्रिया के लिए बोलने जाती थी, सुदर्शन क्रिया के लिए, तो लोग पूछते थे कि क्या इससे ये सब प्रॉब्लम भी हट जाती है अगर हमें पीने की ज्यादा आदत है, डी एडिक्शन है। तो मेरे को लगता था, इतना विश्वास था कि हट जाती है उस टाइम। तो और अभी भी मुझे लगता है कि जरूर हटेगी अगर हम अपनी साधना करते रहें और अगर नॉलेज जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि वो एक दिन में तो होता नहीं है। इम्प्लीमेंट करने का तो बार बार ही अपने आप को प्रयासरत रहना पड़ता है, पर साधना के साथ साथ जरूर हम कर पाएंगे, और थोड़ा सा संयम के साथ। तो और उस दिन आप लोगों ने वो बड़े अच्छे प्रोग्राम का भी नाम ले रहे थे भैया, वो मैं स्टैमर कर रही हूँ नाम लेने में, क्या नाम था उसका, वेलनेस प्रोग्राम था भैया। तो वो या कोई भी अगर, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर मैं किसी के को इस बारे में और अच्छे से समझाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वो भैया कंसर्न थे, ये बहुत साल पहले की बात है, और वो पड़ोस के भैया थे। जैसे हम जाते हैं ना आसपास में, बोलते हैं कि आप कर लो, हेल्थ के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है। तो अभी मेरे मन में आ रहा है कि जैसे कुछ कुछ अगर मुझे पता होता कि कहाँ कहाँ हैप्पीनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो या कोई ऐसा फ्री सेशन मेडिटेशन का अगर कोई ले रहे हैं टीचर्स, जैसे मुझे पता है, तो मैं उन लोग को बताऊंगी, फॉरवर्ड करूंगी वो मैसेजेस। एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकती हूँ अपने लेवल पे, मैं ज्यादा कुछ। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आया है। मैं पिछले 1 साल से भिड़ गई कि नहीं, मुझे करना है तो करना है, थोड़ा रुक रुक के ही सही, पर करना है। और मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया मेरे क्योंकि मैं टाइम पे क्रिया भी नहीं कर पाती, ना टाइम पे ध्यान कर पाती हूँ, पर मैंने जितना भी किया मेरे में इम्प्रूवमेंट आया। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग इतना तो जानते ही हैं कि ये पहले कैसी थी और अब ये कैसी हो गई है। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं पूछूं, मेरे से नहीं रहा गया कि ये मैं और कैसे मैं लोगों को और बोल सकती हूँ। थोड़ा सॉरी, मैं अलग ही चली जाती हूँ, पर नहीं रहा गया मुझसे भैया। मैं काफी दिन से चाह रही थी बात करना, पूछना। और मैं बाकी भी टीचर से अगर मेरी बात होती है या वॉलेंटियर से बात होती है अभी आजकल, तो उनसे भी यही सब बातें होती हैं, तो वो लोग बोलते भी है, समझाते भी हैं। तो मुझे लगा आप लोग का, और इनफैक्ट ये है कि कितने प्रश्न हमारे मन में होते हैं वो कोई और पूछ लेता है या कोई डिस्कस कर लेता है, इतना मन हल्का हो जाता है कि अच्छा चलो। मैं होमवर्क अपना करती नहीं हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे लगता है तुम जाओगी, तुम सुनोगी, फिर तुम्हारे मन में प्रश्न आएंगे, तुम ठीक से, इतनी सारी बातें हैं। तो इस कारण से मैं फिर सोचती हूँ बाद में देख लो, और तुम ऑनलाइन आओ नहीं। अभी जैसे हम लोग, मैं आ गई ऑन, पर आज पता नहीं कैसे, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, पूछ लो भैया से। आप लोग सब लोग इतना अच्छा समझाते हैं, जब बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, कितनी बातें आ जाती हैं, पता चल जाती हैं। चलो, बहुत बढ़िया। माधुरी जी ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया, और एक चीज पूछ भी ली है कि मुझे चाहती हूँ मैं कि इस नॉलेज को, इस जीवन को सबके तक पहुंचाऊं मैं, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है। तो बड़ा सुंदर चीज आपने पूछा अभी माधुरी जी, और उसका उत्तर ये है कि 10th ऑफ फरवरी से 10 फरवरी से अनन्या जी है, डॉक्टर वेलिंडा है, आई विल आल्सो बी देयर। हम लोग यहाँ पे वेलनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करने जा रहे हैं। सो इट विल बी अ वैलेंटाइंस डे स्पेशल
वेलनेस प्रोग्राम, तो उसकी लिंक यहाँ पे मैं शेयर भी, अभी मेरा फोन मेरे पास नहीं है, आई जस्ट ओपन अ व्हाट्सएप वेब इस यहाँ पे, और मुझे वो लिंक मिल जाती है तो मैं जरूर यहाँ पे उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि आपको लोगों तक पहुंचना है तो उससे रिलेटेड एक व्हाट्सएप मैसेज जो होता है उसका ग्राफिक वगैरह बना के, और उससे रिलेटेड एक वेलनेस प्रोग्राम का मैसेज जो होता है आज ही मैं बना के अपने ग्रुप में डाल दूंगा। आप जरूर फिर जिन तक आप लोगों को पहुंचना है उन तक आप पहुंचे और उनको इसके बारे में जरूर बताएं। जैसे ही यहाँ पे वो खुल जाता है तो वैसे यहाँ पे भी चैट पे भी मैं उस वेलनेस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन की लिंक यहाँ पे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। So thank you so much for bringing, and don't feel bad or anything about कि मैंने ऐसे पूछ लिया वैसे कुछ पूछ, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचिए। You are welcome to come here, ये आपका ही सत्र है, आपके ही प्रश्न यहाँ पे आप जरूर उठा सकते हो, आपका अधिकार है। Don't feel bad about it। बुरा मानने का नहीं, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, and you are welcome to ask any such question। जो पूछना चाहते हो आप जरूर पूछ सकते हो। Thank you so much। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आ जाएगा तो संगीता जी, शायद आपका नेट कनेक्शन ये था तो we could not hear। नहीं, we are not able to hear you, you are on mute। आप म्यूट पे हो। Okay, I'm sorry for that. Yeah, that. So I was hearing Kashi Bhaiya, and very beautifully he explained regarding the freedom is not negating something, but you have a choice in that. So that is what is freedom. So that is that what he explained further is that mukti is that ability when to come and when not to come in your life also. Life like Gurudev says, no, ki I come after many lifetimes, like after many years, like he takes a birth. So it is, he has that choice of whether to take the birth or not. Otherwise, regularly, usually what happens, many are binded with that, you know, हम वो बंधन में रहते हैं, जन्म और मरण के चक्कर में रहते हैं, तो वो freedom नहीं है। Freedom is to have the choice, and when you don't have the desire for self, then you turn towards that world and you do the uplifting the world. So that is what it is. So that is again the mukti, because you don't have any desire for yourself. So जो भी कर्म होता है, जो भी कार्य होता है, वो सबके भले के लिए ही करते हैं हम. It is nothing for our own self. So these few other points are also there, but would you like to explain us regarding the freedom, that to have a choice regarding all this? So freedom is to have the choice and not negating something. Yeah. So that is what. हाँ संगीता जी, ये सत्र में अभी मैंने एक 10-15 मिनट पहले ये सारी चीजें डिस्कस कर ली एक्चुअली। Okay, that's fine. That's fine. Absolutely fine. I'm late. Yeah, I was there actually, but into another one. Yeah. It's okay. So we go to the next question regarding Leelavati, if you would like to answer that, or perhaps others can take up. No worries, I'll come again. Yeah. You can ask the question. It's okay. Go ahead. Okay, so what is liberation in that? You know, जो liberation बताते हैं, जो लीलावती को, you know, she asked for that liberation and she prays for her husband also. You know, because of all this, she goes ahead in all this and she comes up to that, all the abilities to go here and there, you know, or जो भी उनको जो what you call the abilities she gets
the divine abilities. So what is that liberation means actually? The liberation. What do you mean by that? Sure. तो प्रश्न जो अभी संगीता जी ने पूछा कि जो लीलावती होती है उनको फिर उनके जो आस्क रहते हैं, जो पहले 2 आस्क रहते हैं, तो एक पहला आस्क तो रहता है उनका जो वर मांगते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे पति को मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। तो लिबरेशन तो उनको उनका आस्क नहीं रहता है। खैर उनको लिबरेशन मिलता है, बट इट विल कम एट द एंड ऑफ द स्टोरी। लीलावती पद्मराजा की स्टोरी खत्म हो जाएगी जब वो फिर से, जो हमने देखा ना अब तक कहाँ पे पहुंच चुके हम लोग, कि जो लीलावती सरस्वती होती है वो सरस्वती को कहते हैं वशिष्ठ ब्राह्मण के साथ बात करने के बाद, वो फिर क्या होता है, हमने आज के सत्र में देखा, मैंने सुना था थोड़ा सा, तो मेरे को पता चला कि वो फिर विदुरथ राजा की कहानी को हमने आज देखा कि विदुरथ राजा का युद्ध होता है और वहां पे भी उनको वो लीलावती 2 करके मिलती है और उनके साथ भी उनका वार्तालाप होता है। उनकी भी वही प्रार्थना रहती कि जैसे वहां पे हो जाएगा, तो वो पूछती कि मुझे भी जैसे कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और यहाँ के विदुरथ राजा फिर से पद्म राजा, तो पद्म राजा उस जगह पे सरस्वती को आशीर्वाद मांग लेते एक, बोलते वो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे मेरी जो इस जन्म के खत्म हो जाएगा तो आईड लाइक टू गो बैक इन द पद्म राजा's बॉडी, पद्म राजा के जीवन में मुझे लौट के फिर से जाना है और वहां पे मुझे फिर से वो जीवन जीना है, वो मांग लेता है। तो सरस्वती क्या करती है, सबको तथास्तु तथास्तु कहते जाती है। तो वो लीलावती बोलती कि मुझे भी जाना है, और जो पद्म राजा होते हैं वो भी जाना है। तो फिर जब वो स्टोरी आगे बढ़ती है तो उसके बाद में फिर वो जो वहां के विदुरथ राजा है वो भी इस पद्म राजा की भी, इनका बॉडी 30 दिन तक रखा होता है यहाँ पे, तो वो बॉडी में रिटर्न आ जाते हैं यहाँ पे। ही कम्स बैक टू दिस लाइफ, पद्म राजा के लाइफ में ही कम्स बैक हियर। और जो लीलावती है वो वहां की लीलावती वो भी यहाँ पे आ जाती है। फिर वहां पे वो भी प्रश्न उठता है कि एक लीलावती है ऑलरेडी बैठी हुई है वहां पे मेडिटेट करते हुए, फिर से दूसरी लीलावती भी आ गई, 2 लीलावती कैसे? तो फिर वो आगे चल के बताते कि जो पहले वाली लीलावती थी उसका शरीर वहां पे देख के उन्होंने वो जला दिया है करके, उनको लगा कि हो गया तो उन्होंने वो जला दिया शरीर। और जो दूसरा वाला जो पद्म राजा है तो वो शरीर वो यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ वो सटल रूप में आता है और यहाँ पे आता है। और जो ये अपना ये रहता है क्या बोलते हैं लीलावती, वो लीलावती वहां पे आती है। तो जो पहली वाली लीलावती है वो वहां पे नष्ट हो चुकी होती है, दूसरी वाली लीलावती आती है। तो वो 2 ऐसा कुछ तो कहानी है, उसको आगे बढ़ते तो जब वो आएगा ना तो उसको देखेंगे हम लोग कि वो दोनों का क्या वार्तालाप होता है, क्या कि दोनों कंफ्यूज होते हैं क्या, जब लोगों को जब 2 दिखते हैं तो क्या वो होते हैं क्या नहीं, ऐसे सारे प्रश्न उठाएंगे। जब आप पढ़ोगे ना तो इसको ये आएगा। और फिर उसके बाद में ये जो लीलावती है और ये पद्म राजा माने एक्चुअल वर्ल्ड में विदुरत्व का जन्म खत्म करके रिटर्न बैक टू द वर्ल्ड, जो जहाँ पे लीलावती होती है, वो लोग फिर क्या करते हैं, उस जीवन को जीते हैं टिल द एंड प्रॉपरली। और फिर जब वो दोनों के दोनों मर जाते हैं तो वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बिकॉज अभी क्या होता है, पद्म राजा ज्ञान में नहीं होता है पहले, और जब उसने विदुरथ राजा का जन्म नहीं लेगा ना, अदरवाइज वो ज्ञान में नहीं होता इसलिए लेता है। लीलावती भी ज्ञान में नहीं, वो लिबरेशन मांगती ही नहीं है सरस्वती को। इफ यू सी इट, उसने वो तो एंटेंगल में है, वो तो मोह में अटकी हुई है, अपने पति के मोह में अटकी हुई है, लिबरेशन को मांगती ही नहीं है, मुक्ति को मांगती नहीं है। लेकिन जब वो सारी चीजें सरस्वती उनकी जीवन में आ जाती है और जब उनके साथ वो चर्चा होती है, ये सब कुछ होता है, और जब वो उसको सारी चीजें दिखाई देती है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम लीलावती फिर एनलाइटन स्थिति में, मुक्त स्थिति में, सौर्य मुक्त की स्थिति में आ जाती है। और फिर जो पद्म राजा को भी ये सारी चीजें दिखती है ना, विदुरथ राजा के जन्म में सरस्वती और लीलावती उनसे मिलती है, तो उनको भी वो अचंबा लगता है। लेकिन वो वहां से लौट के यहाँ पे पद्म राजा के जीवन में आता है और फिर लीलावती और पद्म राजा दोनों फिर इस पाथ पे चलते 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 सहदेव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और फिर बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जिस मुक्ति की जो बात हो रही है, इस जो लिबरेशन की जो बात आपने पूछी, वो लिबरेशन माने फ्रीडम, वो लिबरेशन माने मुक्ति, वो लिबरेशन माने अपने आप की जो चॉइसेस है कि इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो एनफोर्स्ड स्थिति में अपने को नया जन्म लेना पड़ता है, बिकॉज अपनी वासनाएं अभी तक खत्म नहीं हुए, उन वासनाओं को खत्म करके अपना जो बैंक बैलेंस है, जो संस्कारों का बैंक बैलेंस हम लोग लेके आए, उसको खत्म करके अपने एक्शंस को करते रहना, यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है।
तो उसको अभी तक वो उस स्थिति में नहीं पहुंचे, इट इज नॉट देयर आस्क राइट नाउ, वो अभी भी वो एंटेंगलमेंट में फंसे हुए। वो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एंड तक आएगी, कंक्लूजन तक, तब वहां पे विदेह मुक्ति की बात होती है। तब तक तो दे आर नॉट इवन आस्किंग फॉर लिबरेशन, बट लिबरेशन इज व्हाट इज मीन्स, जो आपने प्रश्न पूछा वो मुक्ति है। मुक्ति माने जन्म मृत्यु के संसार का जो चक्र है वह करते हुए या इसको जीते हुए भी आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा नहीं। यू हैव ओनली फ्रीडम फ्रॉम दैट आल्सो, कि यू डू नॉट वांट टू डू दिस, yet you have freedom to do everything. आपके पास सारा सब कुछ करने का फ्रीडम होने के बावजूद भी आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, या जो कुछ भी करना है वो मेरे लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। You just want to do something for the world, to just uplift the प्राण शक्ति कॉन्शियसनेस, उनको भी ज्ञान में लाना, उनको दुखों से मुक्त करना, जो फंस चुके हैं यहाँ पे प्रॉब्लम उनको निकालना। ये मुक्ति के लक्षण है सारे, ये जीवन मुक्तों के लगते के लक्षण, तो वो आएगा आगे, आगे चल के आएगा, बट दैट इज व्हाट द लिबरेशन इज। वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। Yes, thank you very much, Someshwar ji. And even here, there's one more sentence here. It is written, liberation is the realization of total non-existence of the universe. That means it is to liberation is to realize that all this is pure consciousness. So even that can be to realize that everything is Brahman. So even that can be liberation, right? हाँ, वो आत्मज्ञान की बात हो गई ना, कि आत्मज्ञान आपको हो गया तो यू आर लिबरेटेड। तो जब आत्मज्ञान आ जाता है, जब अपने आप को जान लेते हैं, तब आप मुक्त होते हैं। तो दैट इज लाइक मुक्त होने के लिए दैट्स अ प्री कंडीशन, कि आपने अपने आप के साथ होना सीख लिया, आपने अपने आप का अनुभव कर लिया, तो उसी को हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं। वही लिबरेशन है कि कोई सेल्फ रियलाइज हो गया, मैंने अपने आप को उन्होंने जान लिया, जानने के बजाय अपने आप में स्थित होना सीख लिया, तो फिर वो मुक्त हो गए, लिबरेटेड हो गए। तो ये भी इस तरह से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। Yeah, thank you very much. चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ मन में प्रश्न है तो पूछे जा सकते हैं। तो जो माधुरी जी ने जो प्रश्न पूछा था यहाँ पे, तो माधुरी जी मैं यहाँ पे अपकमिंग वेलनेस प्रोग्राम जो है ना, उसकी लिंक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो आपको जिन तक उसको पहुंचाना है, आप जरूर उसको पहुंचा सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। वेलनेस प्रोग्राम जो है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10th February से लेके 14th February। सो दिस विल बी वैलेंटाइंस डे स्पेशल, Valentine's special wellness program. So you mean couples can come and join them? Yes, they can. Yeah. So each other's Valentine's gift will be a wellness program. You know, you can do that. Gift your spouse a wellness program. Yes. So आज तो 23 तारीख है, उससे पहले वैलेंटाइन से पहले तो प्रजासत्ताक दिन आ रहा है अपना, रिपब्लिक डे। So definitely we'll plan something. It comes on Wednesday, तो उस दिन छुट्टी भी रहेगी सबको, तो we'll plan something for that day. That day we are going to complete 200 गुरु पूजा के सत्र. So उसके लिए भी there will be some program we'll schedule either in the morning or in the evening. तो ये सारे प्रोग्राम प्लान करके हम लोग आपको नोटिफाई करेंगे। सो कीप योरसेल्फ गियर्ड अप फॉर दैट इवेंट व्हिच विल कम बिफोर दिस वैलेंटाइंस डे।
वैलेंटाइंस डे विल कम इन द नेक्स्ट मंथ. इस मंथ में जो अपना 26 को जो आने वाला है रिपब्लिक डे, उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में. ठीक है, तो चलिए आज के इस सत्र को फिर यहाँ पे और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं. विल पॉज अवर सेशन हियर. जय गुरुदेव.